Assalamu alaikum everyone. Hello. Am I audible? Hello. जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? Okay, I hope everyone is doing fine and you can hear me. So I am Sabah Harun. Let me just share my screen, then we will start our class officially. Okay, so जी अस्सलाम alaikum. I hope you can see my screen now. Just let me know if you can turn on and off your mics. यस मैम स्क्रीन शो हो रही है। With officially we will start our session, right? So my name is hello, hello. Can you hear me, everyone? Okay, if you can hear me, just anyone, just give me a message or just say thumbs up so that I got an idea that I'm audible. Okay, so I got a message. Okay, yes, we can. Voice is clear. Thank you so much, Edmund. So in this course, we will be we will be discussing about modern AI and we will be talking about different AI patterns and different AI content creation. So basically objective हमारे जो होने वाले हैं वो है understanding of the roles of AI in modern content creation. I hope you are pretty much familiar about what is content creation.
different types of content we can create online. Anyone can tell me that any two or three types of content create online? Because this is going to be a workshop and this is going to be a two-way communication. मैं भी कुछ बताऊंगी, कुछ आप बताओगे, so that we can understanding that we are on a same page, right? So anyone who can tell me what kind of content you can create online? Anyone? ओके, नो प्रॉब्लम, इफ यू डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग, कोई मसला नहीं है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि मॉडर्न कंटेंट क्रिएशन कैसे होता है एआई के थ्रू। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ChatGPT and different types of AI tool can use to create content, right? And there are different types of content. Definitely, हम लोग blog post बना सकते हैं, social media captions. Then we can design different product description, email content creation. Then we can talk about educational content and a lot of other content. हम वो भी इस कोर्स में बात करेंगे। We'll be talking about after creating, ये अभी तक जो हमने चीजें बनाई रिटर्न फॉर्म में। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ रिटर्न नहीं होती है, दैट्स नॉट, कंटेंट इज नॉट जस्ट अबाउट द एसेस थिंग्स। कंटेंट क्रिएशन इज ऑल अबाउट all the content which we can see online. It can be a picture, it can be pamphlets, it can be a banners, it can be any kind of content which we can see online, that's called content, right? Then we will be using Canva. We will be using Canva for developing graphics. हम लोग चैट जीपीटी यूज करेंगे फॉर की डेवलपिंग कंटेंट, रिटन कंटेंट, एंड देन कैनवा हम लोग यूज करेंगे उस कंटेंट की ग्राफिक्स बनाने के लिए। देन हम लोग उस ग्राफिक्स को और उन दोनों चीजों को मर्ज करने के लिए और उनको मर्ज करके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन से ब्रांडिंग टेक्निक्स हैं, कौन किस तरह से हम लोग ब्रांड की गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं, और इन केस इफ वी डोंट हैव एनी ब्रांड देन हाउ वी कैन create our own brand. Then we will be talking about design principles, हमारी रफ सा सीवी फॉर जो डिजाइनर्स होते हैं उनके लिए एक सिर्फ सीवी इनफ नहीं होती है, दे मस्ट हैव सम डिजाइन पोर्टफोलियो, राइट, विच इज गोइंग टू बी एन ऑनलाइन। और इसके लिए हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे, डिफरेंट एआई टूल्स को यूज करेंगे। तो इसके अलावा भी हम लोग डिफरेंट टूल्स के बारे में बात करते रहेंगे, ये एक स्मॉल से ऑब्जेक्टिव से इस कोर्स के, राइट। देन आपके क्या होने वाले हैं, आउटकम इज गोइंग टू बी कि जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हो, either you have a very good English language skills or not, either you have different designing skills or not, either you have efficiency of AI tools or not, आप टेक लिटरेसी है आपकी या नहीं है, irrespective of all these things, you must can understand, or you must will be able to write down a content with a higher efficiency. Then you can use effectively, you can use AI tools, different जो भी tools हैं आपके वो आप effectively use कर पाओगे after this course. And then you can use designing through Canva. Canva के लिए कोई भी आपको prior experience नहीं चाहिए, the end yeah, content creator, and you can start agency, and you start working for different organizations, right? So what is content writing? If I will simply define the content writing, तो हमारे दिमाग में एक सिंपल सी चीज आती है कि we will be having some topic, हम उसके ऊपर थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज, थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कैनवा, चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, या कोई भी हम लोग गूगल कर सकते हैं। ये रिसर्च R&D करने के बाद हम लोग जो एक स्केच बनाएंगे, या अपने पास जो कंटेंट रिटन फॉर्म में हमारे पास जो ऐसे जो भी चीज आपने लिखी है, दैट्स कॉल्ड अ कंटेंट, right? So content writing is basically the process of planning, writing, editing for various digital platforms. क्योंकि हम लोगों ने बात की है कि हम लोग एआई को यूज करेंगे और
फिर हम कंटेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली वो कंटेंट कोई ऐसा तो नहीं होगा कि हम बना ले और उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूज ना करें, राइट। सो जो कभी भी आपने कंटेंट लिखना हो, फर्स्ट यू आर गोइंग टू प्लान कंटेंट कि आपने किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखना है। फर्स्ट यू आर गोइंग टू प्लान एंड देन यू आर गोइंग टू राइट। राइटिंग के लिए आपको R&D करनी पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिफोर AI, we used to do research through Google Chrome, through Microsoft Edge, and through different works, through different publishers, papers, हम लोग इनके थ्रू जो है अपनी R&D करते थे। बट आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा ज्यादा मेन कंटेंट क्या हुआ है, वी जस्ट राइट डाउन प्रॉम्प्ट ऑन चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी फिर हमें क्या करता है, एक बहुत ही कम और ऑथेंटिक जो है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमें एक कंटेंट देता है। देन अबाउट आवर नीड और रिक्वायरमेंट, हम उसमें से जो सिलेक्ट करना होता है कंटेंट करते हैं, एंड देन उसको एक प्रॉपर फॉर्म एडिट यूज इट फॉर आवर फर्दर, right? So if I will say content writing, the definition in a shorter form, it is the art of using words to connect with people online, right? आपने different content creators देखे होंगे, most famous, I'm not giving you this example कि मैं उनको follow करती हूँ, but just giving you an example कि कंटेंट की एक ही टाइप नहीं होती है, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट, एज यू कैन सी। अभी रजब भट्ट जो है, एंसेस्ट्रोलॉजी, एंड देन देर आर a lot of other content creators. Their content is very, different form, but it is still content. वो कंटेंट किसी भी किस्म का है, बट वो है टाइप ऑफ कंटेंट ना। दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, दे do a lot of, you can say what people is going to and people are not going to like. तो ये भी एक टाइप है कंटेंट की। उनको पता होता है कि कौन से लोग हैं जो ऑनलाइन उनको फॉलो करते हैं, और वो कौन सी उनकी चीजें जो हैं वो उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, राइट। सो गुड कंटेंट इज गोइंग टू बी क्लियर, इंगेजिंग, वैल्यूएबल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। अगर आपने कोई भी, आप ब्लॉग उठा लें, वी लॉग उठा लें, या कोई भी चीज आप मुझे एज ए रेफरेंस दे, तो आई कैन प्रिटी श्योर, आई कैन टेल यू इट्स गोइंग टू बी लाइक, उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बॉडी होती है, एंड देन एट द एंड देयर इज समथिंग एंडिंग, राइट। ऐसा नहीं है वो कहीं से शुरू करते हैं कहीं पे चल जाते हैं। लेट्स से अगर कोई अपनी डेली लाइफ भी शेयर कर रहा है, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम टू प्लान कंटेंट के व्हाट वी आर गोइंग टू शेयर एंड हाउ वी शेयर, right? So good content is clear, engaging, valuable, and well structured. Is it clear, everyone, that what is content and how we can, what is got good content and bad content? अभी डेफिनेटली मैंने गुड कंटेंट ही आपको बताया, तो बैड कंटेंट, हमें अगर गुड कंटेंट की पहचान हो तो बैड कंटेंट ऑटोमेटिकली वी कैन आइडेंटिफाई। ओके, ओके, लेट मी जस्ट सी इन अ चैट। यस, थैंक यू। सो नेक्स्ट इज, now we have different categories of content. It is very, very important to understand the different categories of the content, के कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं और उनमें कौन कौन सी चीजें हम लोग प्लान कर सकते हैं। I have, categorized here in 8 different categories of content, और फिर मैंने उनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स भी आगे आपके साथ शेयर की कोशिश की है। इफ यू हैव समथिंग टू राइट, यू कैन राइट डाउन विद मी, और या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोशल मीडिया कंटेंट। सोशल मीडिया, ऑल सोशल मीडिया कंटेंट, आप इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, वेबसाइट्स है, एंड ऑल दोज डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस विच यू आर मोस्टली यूजिंग, आप उनमें किस किस्म का कंटेंट बना सकते हैं। यू कैन राइट डाउन कैप्शंस, यू कैन राइट डाउन स्टोरीज, यू कैन राइट डाउन रील्स। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज समझ नहीं है ना, लाइक रील्स, hashtag strat, maybe the pool, so you can simply write down in a chat box, तो मैं आपको उसके आंसर्स एंड पे कर दूंगी, ठीक है। सो कैप्शंस वो होते हैं जब आप कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट, कोई भी आप एप्लीकेशन या सोशल मीडिया पे कोई रील्स देख रहे हो, तो उसका डिस्क्रिप्शन या कैप्शन लिखा होता है ना, आपके पास इंस्टाग्राम और फेसबुक पे यूजुअली होता है, उसको कैप्शन कहते हैं। उसके लिए भी दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ कंटेंट।
देन स्टोरी और रील स्क्रिप्ट, जो आप वीडियोस देख रहे होते हो टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, ऑल दोज वीडियोस हैव सम स्पेसिफिक कंटेंट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस ऐसे रफली बनाई वीडियो और वो अपलोड कर दी। नो, दे कौन सा कंटेंट ज्यादा मार्केट में इन है और वो उसके अकॉर्डिंग बना रहे हो। समटाइम आपने सॉन्ग और फॉर एनी म्यूजिक एंड सो उसके ऊपर लोग जो है अपना कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, राइट? सो दैट्स आल्सो अ स्ट्रेटजी फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर। देन हैशटैग स्ट्रेटजी, कोई भी कंटेंट बना के ऐसे ही अपलोड करें तो वो मार्केट में इन नहीं हो कभी कुछ, बट इंशाल्लाह इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। तो वहां पर कुछ हैशटैग्स होते हैं, हैशटैग ईरान वर्सेस, we have blog articles, all those blogs which you can see online, जो हम लोग देखते हैं, कोई आर्टिकल्स आप वेबसाइट पे सर्च करते हो वो तमाम ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स में आते हैं। देन मार्केटिंग कंटेंट, marketing content, all those contents which you can or you actually design for other companies or for other agencies for their marketing purpose, जैसे प्रोडक्ट एजुकेशनल कंटेंट को ये पिक्चर्स के फॉर्म में इन अ वे ऑफ स्टेप बाय स्टेप, देन स्टेप बाय step guides you can write down ebook summaries, you can write down workshop slides। अभी तक क्लियर है? Any question till point number 4? Okay, I hope it's clear. Next we have, okay, so I have in something to chat. Okay, yes, ebook summaries, ebook आप, ओके, ई बुक्स, ऑल दोज ई बुक्स होती हैं हमारे पास जो आप लोग ऑनलाइन बुक्स रीड करते हो ना। आपने कभी देखा होगा कोई एक बुक है, वो दैट बुक इज अबाउट 4,000 पेजेस और 5,000 पेजेस, राइट? सो व्हेन वी विल स्टडी इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म तो आप लोग देखेंगे वहां पर दे हैव डिफरेंट पर्सन्स हु इज आस्किंग समरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। जो वो बुक रीड नहीं करना चाह रहे, दे आर नॉट वेरी गुड इन रीडिंग बुक, दे वांट समरी ऑफ दैट बुक। So what you have to do, you have to read that ebook and then you have to summarize a summary of that specific book. So वो ebook summaries होती है, ठीक है? यानी आपने एक ई बुक रीड की और उसकी एक प्रॉपर 1 और 2 और मे बी 3 पेजेस की समरी आपने बना के उस पर्सन को दे दी, दैट्स कॉल्ड ई बुक समरी। देन एट द फिफ्थ पॉइंट वी हैव वेबसाइट कंटेंट। उसमें क्या, different pages होते हैं, होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज, फैक्ट, टेस्टिमोनियल्स एंड अ लॉट ऑफ अदर पेजेस एज वेल। आपको वो बताते हैं कि वी वांट content for this specific page, this is our company, this is our services, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इस किस्म का कंटेंट हमें चाहिए, राइट? देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन अ कंटेंट फॉर दैट वेबसाइट, मे बी एक या दो सैंपल्स आप उनको बना कर देते हो, देन दे आर गोइंग टू पिक एंड चूज फ्रॉम दोज सैंपल्स, दैट्स कॉल्ड वेबसाइट कंटेंट। टेस्टिमोनियल्स लिखते हो आप, अब डिफरेंट जो भी ऑनलाइन आपको कंटेंट मिल रहा है ना, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो जो भी वहां पर इंग्लिश में या पिक्चर्स लिखी हुई है, दैट्स एवरीथिंग इज कंटेंट। वो भी किसी कंटेंट राइटर ने कंटेंट क्रिएट किया है तो आपने वहां पर देखा, राइट? देन एट द सिक्स वी आर गोइंग टू हैव अ पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? जैसे आप अपना इंस्टाग्राम का पेज बनाते का पेज बनाते हो एंड अगर हम 5-6 साल पीछे चले जाएं तो वी यूज टू राइट डाउन, वी यूज टू शेयर थिंग्स अकॉर्डिंग टू आर पर्सनल प्रेफरेंसेस। हमें कोई कोट अच्छी लगी, हम वो शेयर कर देते थे। we like something, we like some pictures, we like some very good thing, और कोई ऐसे हमें अच्छा लगा, we used to share those things in our Facebook और Instagram और जो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं हम उस पर शेयर कर देते थे। बट आफ्टर कमिंग इनटू द AI era, it becomes a field, right? Now this is called personal branding।
हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू शेयर एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर अ विद अ पर्पस। हम कोई भी चीज ऐसे ही शेयर नहीं कर सकते। इफ वी आर शेयरिंग आवर पिक्चर्स, इफ वी आर शेयरिंग आवर कंटेंट और ऑल दोस थिंग्स, तो वो एक पर्सनल जमरे में आई है। We are going to write down our resume highlights. We are going to write down our LinkedIn bios, portfolio text, personal statements. जैसे आप अगर कोई भी एक एग्जांपल देखें, आप रजब भट्ट को ही देखें, तो वो फैमिली व्लॉगिंग के लिए मशहूर है। हामिद मीर इज फेमस फॉर फॉर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, राइट। और इसी तरह आप किसी भी पर्सन का नाम ले लें, तो वो एक स्पेसिफिक उनका एक पर्सनल ब्रांड है। मीन्स दे आर फेमस फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग। ऐसा नहीं है। अब अगर हम आइडियाज की बात करें, सो आइडियाज इज फेमस एंड इंशाल्लाह इज गोइंग टू बी फेमस फॉर देयर एजुकेशनल शॉर्ट कोर्सेज एंड ऑल दोज थेरीज, राइट। सो द सिटी स्कूल का अगर हम नाम ले लें, तो वो कोई भी उसको ये नहीं कहेगा कि ये फेमस है फॉर फॉर एजुके फॉर टेक entertainment purpose. No, it's famous for their educational reforms. It's famous for their educational theories and all those things. So this is called personal branding. जब आपका नाम जो है, वो सुन के ही उनके किसी के दिमाग में एक पॉइंट क्लिक करता है कि ओके फाइन, दिस पर्सन इज फेमस फॉर दिस थिंग। सो दैट्स कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। स्क्रिप्ट कंटेंट। स्क्रिप्टेड कंटेंट मींस आपको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है। जैसे कि लेट्स से मैं अगर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हायर करना चाह रही हूँ, तो मैं उसको पहले बताऊंगी कि आई यूज टू शेयर वीडियोस ऑन माई यूट्यूब चैनल और ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अबाउट टेक्नोलॉजी। फिर वो मुझसे पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी you are preferring, is it AI, is it web development, is it graphic designing। तो मैं उसको 2 और 3 अपनी फील्ड स्पेसिफाई करके दूंगी। देन वो उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए यूट्यूब की शॉर्ट्स या यूट्यूब के लॉन्ग वीडियोस बनाएगा, उसका कंटेंट जनरेट करेगा। जब वो कंटेंट जनरेट करके मुझे देगा, देन आई एम गोइंग टू डिजाइन और आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड माई वीडियोज अकॉर्डिंग टू दैट कंटेंट। जैसे आप ये देखें, ये एक जो मैं अभी वर्कशॉप आपको करा रही हूँ, इसका भी एक कंटेंट क्रिएशन हुई है पहले, राइट। मुझे एक टॉपिक दिया था एंड देन दे टोल्ड मी कि ये दिस इज द योर टॉपिक एंड दिस इज द टाइम, और आपने इस टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी वर्कशॉप को कंडक्ट किया। आई डिड R&D। दैट्स कॉल्ड स्क्रिप्टेड कंटेंट क्रिएशन, राइट। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली वॉइस ओवर स्क्रिप्ट, AI स्टोरी टेलिंग। आपने देखा होगा, मतलब इंशाल्लाह हम लोग, मैं जरूर एक वर्कशॉप रखूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि इफ यू हैव अ वेरी गुड वॉइस, यू कैन सिंपली वर्क एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आप क्या करेंगे, लोग आपको लिखा हुआ कंटेंट देंगे, आपको उसको रीड करना होगा अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, एंड देन यू हैव टू गिव योर वॉइस, जो MP3 है आपकी, वो भी सिर्फ आप देंगे। दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ freelancing or content creation, right? And at the end, visual plus AI content in this, ये एक बहुत डिमांडिंग फील्ड है जिसमें आप लोग क्या करते हो, AI जनरेटेड इमेजेस यू कैन यूज कैप्शंस, यू कैन यूज कोड्स, यू कैन यूज कैनवा टेम्पलेट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जस्ट यूज्ड बाय AI टूल्स। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। यू आर जस्ट गोइंग टू यूज AI टूल्स एंड यू going to design something according to the requirement of that specific person, और आप उसको डिजाइन करने के बाद सबमिट करा देते हो। दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिएशन। डेफिनेटली इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है फॉर डिजाइनिंग के, बट यू नीड सम टूल्स। आपको कुछ उनकी लर्निंग आनी चाहिए, आपको उनका यूज आना चाहिए, दैट हाउ यूर going to use, and then you're going to submit it. So there are some प्रॉब्लम है अभी तक। Okay, so I have some questions. No question. I hope my screen is not freeze. Actually, वो freeze नहीं है Hamza. I'm explaining this slide from past 5 minutes. So, okay.
ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, बिकॉज हम लोग इनको एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू डिजाइन योर ओन कंटेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, इंट्रोडक्शन टू एआई टूल्स फॉर राइटिंग। अभी जैसे मैंने पीछे बात की आपके साथ कि हमारे पास क्या होता है कि एक हम लोग एआई टूल्स को यूज करेंगे कंटेंट राइटिंग के लिए। सो फर्स्ट वी विल बी यूजिंग चैट जीपीटी फॉर जनरेट आइडियाज, राइटिंग ड्राफ्ट, हेडलाइन, ऑल दोस। आई होप आप सबको आइडिया है चैट जीपीटी का। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि हम लोग चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं। आप लोग सिंपली क्या करोगे, यू आर गोइंग टू गो एनी माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर्स, गूगल यूज करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हैं, और आप वहां पर जाके लिखेंगे chatgpt.com, राइट। सो आप लोग, एक प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी, इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इट्स फ्रीली अवेलेबल। व्हाट इट्स गोइंग टू डू, जीपीटी एक प्लेटफॉर्म है जो इतना पावरफुल है कि इट्स गोइंग टू लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ मटेरियल्स, और आपको जो भी आप क्वेश्चन करते हो उसका एक समराइज्ड फॉर्म में आपको उसका आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके ऊपर जाने के लिए आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, तो उसने मुझे नहीं पूछा सी, उसने मुझे कहा गुड टू सी यू सबा, बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, दैट्स वाई इसने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मुझे कहा है कि ओके फाइन। सो इफ यू आर न्यू टू चैट जीपीटी तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको लॉग इन करना पड़ता है, एंड देन यू कैन कम इन टू द चैट जीपीटी। अगर आप लेफ्ट साइड पे, टॉप लेफ्ट साइड पे देखें तो मेरे पास ये एक न्यू चैट आ रहा है। ठीक है, मैंने जब इस क्लिक किया, सो एज यू कैन सी देयर इज अ शॉर्ट you writing text over here. You can write down your query over here. मेरा थोड़ा प्लेटफॉर्म डिफरेंट है बिकॉज मैंने एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है। आई विल टेल यू अगेन कि वो एक्सटेंशन है APRM। ये एक एक्सटेंशन है, ये काफी अच्छी एक्सटेंशन है, विच इज गोइंग टू गिव यू मच बेटर देन यू नो आंसर्स। अगर आप चैट जीपीटी अकेले यूज करते हो वो इतना इफेक्टिव आंसर नहीं देता है, APRM आपको ज्यादा अच्छे आंसर्स देता है। सो इफ यू आर न्यू, डोंट यू वरी, आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ चैट जीपीटी को ही यूज कर सकते हो। आई हैव, और इट्स पेड, यस एवरीवन टेक अकाउंट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आपको इसका पेड वर्जन आप लेते हो तो उसमें आपके पास ज्यादा फैसिलिटीज होती है, यू कैन डिजाइन और यू कैन जनरेट इमेजेस थ्रू चैट जीपीटी एज वेल। बट अगर आप फ्रीली वर्जन यूज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप फिर भी उसकी उतनी चीजें यूज कर सकते हो जितनी रिक्वायरमेंट है, राइट। ओके, सो लेट्स जस्ट राइट डाउन समथिंग ओवर हियर। हम ऐसा करते हैं, एक डिजाइन कंटेंट फॉर दैट कॉफी शॉप, राइट। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉफी शॉप का हम नाम रख लेते हैं चेरी बीन्स, और मे बी कॉफी बीन्स, राइट। सो यहाँ पर आपको जो प्रॉम्प्ट देनी है वो आपको बहुत लिमिटेड देनी है, राइट। आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखनी है कि आई हैव ओपन्ड कॉफी, काइंडली डिजाइन कंटेंट फॉर मी। अभी आई एम जस्ट, बिकॉज टाइम मेरे पास शॉर्ट है, तो मैं आपको सिंपल सी, एक बहुत सिंपल सी जो कि अच्छी प्रॉम्प्ट नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अच्छी प्रॉम्प्ट क्या होती है, राइट। सो मैंने सिंपली ये कहा है, ठीक है, कंटेंट फॉर मी। सो नाउ इट्स गोइंग टू गिव मी सम कंटेंट। It will take some time due to internet connectivity.
सो अभी यहाँ पर जो मुझे कंटेंट मिलेगा डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कंटेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी जो कंटेंट है आपने इसको अच्छा कंटेंट कैसे बनाना है, बिकॉज हमने पहले ही स्लाइड में बात की थी कि द गुड कंटेंट इज द कंटेंट विच कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द ऑनलाइन ऑडियंस, राइट। सो हमने वो वाला कंटेंट बनाना है जो कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सके। ओके। सो ये आपको कंटेंट दे देगा, आप इसको एक बार रीड करें, इसको अंडरस्टैंड करें, कोई भी एक आपने ले लेना है। ये देखें यहाँ पर हैश टैग्स उसने कुछ यूज किए। हैश टैग ग्रैंड ओपनिंग, हैश टैग कॉफी टाइम, हैश टैग योर शॉप नेम। दीज आर द हैश टैग्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे कि हैश टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं और क्या इसका फायदा होता है, राइट। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी, आपकी ना स्क्रीन विजिबल नहीं है जो आप डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी। Oh, why you didn't told me? Okay, fine. Oops. प्लीज आप Okay. थोड़ा सा Let, मुझे रिवाइज, हेलो, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा मुझको रिवाइज जी जी कर जी जी। सकती हैं क्योंकि मेरा ना मिस हो गया, मेरे पास लाइट नहीं थी, नेट का इशू था। क्या आप ऐसा कहाँ पॉसिबल से है? आपका स्किप हुआ था? ओके मैं फाइन। अभी अभी अच्छा हम ज्वाइन ऐसा किया मैंने। करेंगे। ओके। सो चले हमारे पास 5-6 मिनट है, हम लोग ऐसा करते हैं जो पीछे हमने डिस्कस किया उसको रिवाइज कर लेते हैं, और एआई राइटिंग चैट जीपीटी सुबह चैट जीपीटी से ही दोबारा स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। ओके। सो अभी तक हमने बात की है कि इस कोर्स में हम लोग सीखे डिफरेंट एआई कंटेंट के बारे में, कि कंटेंट कैसे बनाते हैं, क्वालिटी कंटेंट होता क्या है, कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, कैनवा यूज करेंगे फॉर मेकिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या होता है हमारे पास। हम ब्लॉग लिख सकते हैं, हम पोस्ट बना सकते हैं, हम फेसबुक एड कॉपीज बना सकते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, देर आर मल्टीपल कंटेंट एज वेल। फिर हम लोगों ने बात की कि ब्रांडिंग क्या होती है और डिजाइन प्रिंसिपल्स कौन कौन से फॉलो करते हैं, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। देन वी हैव टॉक अबाउट प्रोफाइल बिल्डिंग। ये प्रोफाइल बिल्डिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, दीज आर द आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स। देन वी टॉक अबाउट व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कंटेंट राइटिंग इज बेसिकली एन आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू कनेक्ट विद ऑनलाइन पीपल। देयर आर टाइप्स ऑफ कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। कुछ कंटेंट अच्छा होता है which is directly or which can easily connect with the people, right। और कुछ कंटेंट जो होता है वो अच्छा नहीं होता है because of different ambiguities, because of false language, or because maybe very high level language which is not easily understandable to everyone, right। So good content is content which is clear, engaging, valuable and well structured। उसमें कोई बहुत हाई प्रोफाइल लैंग्वेज यूज ना हो, कोई बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटीज ना हो, which needs to be clear, engaging, valuable and well structured, that's a good content। Then we have discussed different types of categories of content। हमारे पास सोशल मीडिया कंटेंट होता है, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स होते हैं, कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट। आप इसकी पिक्चर ले लें या आप नोट डाउन कर लें। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम चैट जीपीटी, राइट। आई होप इट्स क्लियर। यस। ओके। You will also get a recording of the class. Yes, you will get recording of your class. Any question? ये जो डिफरेंट ब्लॉक्स आप बता रही हैं, कंटेंट की कैटेगरी जो बता रही हैं आप, जी हेलो, तो ये जो जी जी कंटेंट की बिल्कुल कुछ। कैटेगरी होती है, तो वो हम्म। मतलब ये कि हम ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे, कैटेगरी ऑफ कंटेंट थोड़ा सा इलेबरेट देखिए हम करेंगे लोग आप? कंटेंट क्रिएशन, जी जी हम लोग कंटेंट क्रिएशन पढ़ रहे हैं ना। तो जब तक आपको कैटेगरीज ही पता नहीं होंगी कि इस कंटेंट क्रिएशन आप किस किस्म का कंटेंट बना सकते हैं, आप कैसे उसमें आगे फर्दर जो है वर्किंग करोगे।
दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू द कैटेगरीज ऑफ कंटेंट, कि ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप इनमें से कोई एक या दो पिक एंड चूज करके उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे आगे फ्यूचर में जाके फॉर कंटेंट क्रिएशन। राइट, क्योंकि देखिए ये ओके जितने भी ऑनलाइन आप इन्फ्लुएंसर्स देख रहे होते हैं वो कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे होते हैं। किसी ने अपना जो है वो क्लॉथिंग ब्रांड को चूज किया है, वो अपने क्लॉथ्स को पहन पहन के डिफाइन करती है कंटेंट। somebody इज यूजिंग एक्चुअली फॉर ई बुक, somebody इज एक्चुअली रेफरिंग वेबसाइट कंटेंट, वो डिफरेंट वेबसाइट्स को रिकमेंड करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंट पर्सन्स को रिकमेंड करते हैं कि आई हैव वॉच दीज वीडियोज एंड दिस वाज द अमेजिंग थिंग ऑफ माय लाइफ एंड आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस गाय। वो भी एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। राइट, सो देर आर डिफरेंट सर टाइप्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन जो आप यूज करते हो फॉर कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज यू विल बी ओके वर्किंग एज ए कंटेंट क्रिएटर ना। तो जब तक आप कैटेगरीज डिफाइन नहीं करोगे आप आगे फर्दर कैसे वर्किंग करोगे? बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ, बट आई हैव टू स्पेसिफाई वन फील्ड इन विच आई एम अ मास्टर। वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकती है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। सेम थिंग गोज फॉर द कंटेंट क्रिएटर एज वेल। आपको डिफाइन करना पड़ता है कि दिस इज माई फील्ड, ओके आई एम गुड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं सोशल मीडिया की बहुत अच्छी रील्स बना लेती हूँ। राइट, सो देन यू विल बी वर्किंग एज ए सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर फॉर रील मेकिंग। सही क्लियर? ओके, सो इन नेक्स्ट सही क्लास वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम चैट जीपीटी। आई होप आप लोग इसको एक दफा स्टडी करके जरूर आइएगा, ये सारी चीजें जो है क्रिएशन की बात की है, ठीक है? ओके, प्लीज डोंट स्किप माय क्लास, रेगुलर रहे तभी आप इसको, क्योंकि सब चीजें जो है वो एक पैटर्न और एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू चल रही हैं। अगर आप पहली चीजें सीखेंगे तब आपको नेक्स्ट चीजें मिलेंगी। तो प्लीज ज्वाइन योर क्लास ऑन टाइम, और कोई भी क्लास बीच में से स्किप ना करें, जो मैं काम दूं वो भी जरूर करें, ठीक है? तो आज आपने ये कंटेंट क्रिएशन की जो कैटेगरीज है इनको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, ठीक ठीक है? है। अब इसके दैट्स बाद ऑल फ्रॉम कैनवा माय की साइड। क्लास होगी। इसके बाद अब हमारी इसके फ्रीलांसिंग की क्लास होगी। कैनवा की क्लास कैनवा कब इसी होगी? क्लास में सीख कैनवा इसी अच्छा क्लास में सीखेंगे, बट आफ्टर मे बी 1 वीक। अच्छा, मतलब ये कि आप लोगों ने कैनवा और कंटेंट एआई को एक जगह पे कर दिया, चैट जीपीटी को। जी जी, ओके बिकॉज कैनवा भी ओके बगैर चैट जीपीटी के नहीं आ सकता था। ओके ओके। और ठीक है, कंटेंट भी जो है इसके बगैर नहीं हो सकता कैनवा के। ठीक है ठीक है, एग्जैक्टली। सही है सही है। चलो, ओके, थैंक सी यू। यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर। थैंक अल्लाह यू सो हाफिज। मच। यू वेलकम। रिकॉर्डिंग प्लीज दे दीजिएगा। जी जी, टीम आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देगी। थैंक यू।